Today we will start chapter 1, rational and irrational numbers. Chapter name is rational and irrational numbers. Irrational numbers from Salina Concise. कौन सी बुक में से कर रहे हैं बेटा? हम Salina Concise में से करेंगे for class 9th. Yes, Piyush, what do you mean by rational numbers? Firstly, tell me. Yes, sir. बोलो बच्चे. जल्दी. Sir, rational number, the numbers which can be expressed in the form of P upon Q are known The as very good. are known as The rational number numbers. which can be expressed as P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers. Okay, understood? Yes, For sir. example, 7 upon 3, 7 and 3 are integers. Minus 8 upon 4, this is also integers. कट भी कर सकते हैं इसको हम. Minus 2, this is also an integer. Okay, मतलब rational number. कोई नंबर 5 है तो हर्षित, is this a rational? Only number 5? Firstly, tell me. Only number 5 is a rational number or not? Harshit, बोलो बच्चे. Good evening, sir. Good evening, Prakul. Prakul, 5 is a rational or not? No, sir. Yes. 5 के नीचे बच्चे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं ना. 1 is optional. 1 तो किसी नंबर के नीचे भी डाल सकते हैं हम. Okay, sir. So 5 upon 1 is also a rational number. Minus 3 is a rational, Nikita? Nikita? sir. Yes, क्योंकि इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं बेटा हम. अनमोल, 0 is a rational? नो सर. क्यों नहीं है बेटा अनमोल? नहीं सर. यस सर. यस सर. 1 आ सकता है सर इसके नीचे. 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 1090 भी आ सकता है. 0 upon something is always 0. Yes, 0 sir. upon something, कोई भी नंबर हो 0 के नीचे तो always we get 0. तो 0 Okay, is sir. also a rational. That means Rational number. हाँ, 7 upon 0, Q not equal to 0. नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता. 7 Okay, upon sir. 0 is a rational? No, No, sir. it is not a rational. Rational number. Here, first question beta, oral question है. Is 0 a rational number? Yes, 0 है rational number. अभी हमने discuss किया है. Yes, 0 is a rational number. Can it be written in the form P upon Q? Yes, we can write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Yes, बस दो मतलब yes, yes ये लिखना है 2 बार. मतलब अकेला yes yes नहीं डालना, पूरी लाइन लिख देना. Yes, 0 is a rational number. Yes, we can write it in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Okay, understood? Yes, sir. Now, second sum is true and or false. Give reason for your answer. Every whole number is a natural number. Anmol, true or false? Anmol, every whole number is a natural number. Sir. Harpalak, Harpalak, बोलो बेटा. Sir, can I? Yes, Piyush. False. False.
because 0 is a whole number Rational number. which is not a Zero natural. is not a whole number. 0 is a whole number but not natural. उन्होंने every whole Yes. number बोला है ना, तो 0 is the only whole Sorry. number which is not natural. गलत बोल दिया थोड़ा सा. Zero is a whole number but not a rational number. Yes, very good. Second, Harshit, every whole number is a rational number. Sir, true. True. Yes, every whole number is a natural number, rational number. Sorry, every integer is a rational number. Nikita, Yes, sir. every integer is a rational number. True. Every rational number is a whole number. Harpalak, बच्चे हरपलक, बच्चे सुनाई दे रहा है? अब यस या नो क्यों नहीं बोल रहे बेटा? Sir, no. बोलना है बेटा. देखो, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, हमें नहीं आएगा. ठीक है हरपलक? Yes, sir. ओके. एवरी रैशनल इज अ होल नंबर? नो. सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होते बेटा. कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं. समझे? अब अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग, स्मॉलर टू बिगर. इसमें चेंज करना है बेटा हमने. हाउ वी कैन चेंज इट? आल्सो find the difference between the largest and the smallest of these rational number. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place. प्रकुल कैसे करेंगे बच्चे? सो आई गेस हम सारों को पहले एलसीएम ले लेंगे सारों के डिनोमिनेटर्स का और फिर करेंगे. हाँ बे, वेरी गुड. यस बच्चे, इन सब का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे. कितना आ जाएगा? 36 एलसीएम आ जाएगा. ठीक है प्रकुल, फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा? सो जस्ट सो आई गेस यस सर 9. 9 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए? 4 4 5 20. यस प्रकुल 12 को किससे करें 36 आ जाए? 3 3 7 जा 21 21. 3 को किससे करें 36 आ जाए? 12 12 2 जा -24 222. now ascending, which one is the smallest here? प्रकुल -24. यस, माइन नेगेटिव में जितनी बिगर होती है उतनी स्मॉलर होती है, तो -24 सबसे स्मॉलर है. उसके बाद ये सिंबल देखो, जिस तरफ मुंह खुला है तो वहां पे ग्रेटर सिंबल साइन वैल्यू होती है. -20 के 4 के बाद -20 आएगा. -20. फिर क्या आएगा प्रकुल? यस सर 21 फिर 22 फिर 22. सबके नीचे 36 अलग अलग ऐसे डाल सकते हैं बेटा. सिंगल डालना है सिंगल डाल दो, अलग अलग डालना है अलग अलग डाल दो. अब -24/36 ये रहा ना, तो किससे बना वो? -2/3 सबसे पहले. फिर ये सिंबल -20 ये रहा, -5/9 से. फिर 21/36 7/21 12 से. 22 11/18 से. ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. ये क्या हो गया हमारा? असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया. अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर. लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं. तो प्राकुल क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ? यस सर पहले तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि 11/18 -2/3. फिर सर हम इनका एलसीएम ले लेंगे जो 18 ही होगा, और वो होगा सर वो हो जाएगा 1 11 प्लस हो जाएगा वो, और प्लस और ये हो जाएगा 6 to 8 12. वेरी गुड. यस बच्चे, कितना आएगा यहाँ पे? यस सर 23/18. यस, डिवाइडेड 23 को बच्चे 18 से. 18 1 जा 18. यस क्योंकि उन्होंने आगे क्या लिखा है? आल्सो एक्सप्रेस इन करेक्ट टू 1 decimal place. Express this difference as a decimal fraction
करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 5 डेसिमल लग गया बच्चे 0। 18 को किससे करें? 18 3 जा 18 2 जा 36। 14 बच गया बेटा 140। 18 7 जा नियर अबाउट। फिर 14 नहीं 7 8 जा 56 5 7 5 12 फिर 140 एंड सो ऑन। गड़बड़ तो नहीं हो गई? 18 में 18 50 18 2 36 4 140 18 7 7 8 56 5 7 5 12 10 में से 6 के 4 3 में से 2 के। ठीक है, मतलब 7 7 7 7 आएगा ना। अब उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो क्या आ जाएगा? 1.28 आ जाएगा आंसर। ओ सॉरी, ये प्लेस 7 है ना, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा 1.3 आएगा राउंड ऑफ करके। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. श्योर? Yes. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बेटा, जो नेक्स्ट सम है वो तुम खुद करोगे अपने आप। अरेंज 5/8 - 3/16 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कौन सा होता है हर्षित? हर्षित, सर छोटे से बड़ा। छोटे से सर बड़ा, बड़े से छोटा। सर बड़े देख से लो। छोटा। बिगर टू स्मॉलर, स्मॉल। दैट इज यस बच्चे, बिगर टू स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। कर लोगे? आल्सो फाइंड द सम ऑफ द, अब सम बोल दिया उन्होंने, एडिशन करनी है लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन इन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हो जाएगा? Yes. बोलो बच्चे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. now next sum, without doing any actual division, find which of the following rational number have terminating decimal expansion. अब डेसिमल, डेसिमल की 3 टाइप्स होती हैं बेटा। डेसिमल की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा, पता है किसी को? हर पलक पता है बेटा आपको? No, sir. नो। हर्षित पता है बच्चे? सर नो। तो पता है हाँ जी निकिता। सर टर्मिनेटिंग। यस, टर्मिनेटिंग। सेकंड वन? टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नो, नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating. And third one is non-terminating, And non-recurring. non-reoccurring या non-repeating, that is the same thing. Yes. ठीक है? Reoccurring और repeating is the same thing. Okay ब्रकुल? Yes, sir. देखो नेम, terminating का मीनिंग क्या है हर पलक? What do you mean by terminating? And हर पलक बोलो बच्चे। Yes, sir. घबराओ मत, देखो मैथ को सीखना है ना तो बोलना पड़ेगा, ठीक है हर पलक? Okay, sir. हाँ, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चे एंड, जिसका एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका एंड ना हो, ठीक है, बट रिपीट करे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो एंड हो और ना रिपीट करे। अब जैसे टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स हैं, 7/2 है बेटा, 7 अंदर 2 बाहर, डिवाइड करेंगे 3 2 6, 1 आ गया, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा ना हर एक स्टेप पे। डिवाइड डेसिमल में चेंज करना आता है ना डिवाइड करके सबको? पीयूष, प्रकुल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये तो छोटी क्लासेस में किया है हमने। Yes, sir. कट हो गया, 3.5 आ गया ना। 7/2 को डेसिमल में चेंज किया तो कितना आ गया? 3.5 आ गया। Yes, sir.
ये आ गया ना बच्चे? Yes, sir. तो ये कोई आगे मतलब क्रॉस आ गया नीचे, इसलिए ये कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे बच्चे मैं ले लूं 7/3 ले लूं, 7 अंदर 3 बाहर, 3 2 जार 6, 1 डेसिमल लगाया 0, 3 3 जार 9, 1 फिर 0, क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं हम, हर एक स्टेप में एक 0 तो आनी है। फिर से 3 3 जार 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर 3 3 जार 9, फिर 1 एंड सो ऑन, डॉट 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 ऐसे लगा देते हैं बच्चे, 3 डॉट्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगेन एंड अगेन 3 आता जाएगा, तुम सारी उम्र लगे रहो तो भी 3 खत्म नहीं होगा। क्यों हो जाएगा? बोलो बेटा। No, sir. खत्म नहीं होगा. नहीं होगा ना खत्म? No, sir. सर यस। होगा। अच्छा चलो, हाँ जी बेटा। नाउ हमारे पास बच्चे तीसरी टाइप जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस, ये जो दो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं ये रैशनल है बच्चे, बट जो तीसरी टाइप है दैट इज इरैशनल। वो कौन सी टाइप होती है? इरैशनल होती है बेटा। उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन दोनों को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली टाइप को भी और सेकंड वाली टाइप को भी। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि हमें डिवाइड ना करना पड़े और सीधा पता चल जाए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q is in the form 2 the power a into 5 the power b, where a and b are non-negative integers. Non-negative integers. Non-negative का मतलब 0 भी हो सकते हैं, a और b की वैल्यू, या पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी बच्चे। अंडरस्टूड? समझ गए? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. नाउ अब बच्चे हाँ? इसके अंदर क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसके अंदर क्या होता है? क्यू आल्सो हैव, क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सेकंड टाइप को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को। क्यू आल्सो हैव, आल्सो मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5, other than 2 and 5, 2 and 5 के बिना भी बच्चे फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. इसको तो हम रैशनल मतलब P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो अब एक और चीज मुझे ये बताओ, 2 into 5 कितना होता है? सर 10। 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 कितना होता है? 100. सर 100। 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 कितना होता है? सर 1000। 1000। मतलब अकेला 2 अकेला 5 पावर जितनी मर्जी हो वो डेसिमल में मतलब कौन सी टाइप होगी? पहली टाइप होगी, टर्मिनेटिंग। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है बेटा 7/16 है, 7 ये कट तो नहीं हो रहे, पहले तो ये चेक करना है ये कट नहीं हो रहे ना। 7 एज लाइक 16 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख 4। सकते हैं ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अकेले नीचे अकेला 2 आ रहा है ना बेटा? Yes, नीचे अकेला 2 आ रहा है, सर तो कौन सी टाइप होगी ये? टर्मिनेटिंग टाइप होगी। डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? टर्मिनेटिंग टाइप है। अकेला 2 आ जाए, कहने का मतलब ये है कि अकेला नीचे 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 and 5 कंबाइंड आ जाए, तो कौन सी टाइप होगी? टर्मिनेटिंग। अगर 2 and 5 के बिना भी बच्चे कुछ और आता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। अब जैसे
सेकंड पार्ट है बेटा इसका 23/125 है बेटा। हर पलक 125 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं पलक नहीं बच्चे, एक मिनट। हर पलक बोलो Yes, बेटा, 125 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना? yes, sir. हाँ जी। तो ये भी देखो अकेला 5 आ रहा है ना नीचे बेस, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। प्राकुल 9/14 बताओ बच्चे। 14 सर हम इसको लिख सकते हैं 2 into 7 तो Yes, बेटा। इट इज नॉट एन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा था ना, क्यू आल्सो हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। चलो प्राकुल मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूँ बेटा। यस सर। एक मिनट। ये बताओ बच्चे, प्राकुल यस सर सर जस्ट मिनट। यस सर इट्स टर्मिनेटिंग। यस, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो 1/10 आ जाएगा। मतलब कटिंग करनी जरूरी है। यहाँ देखो कट नहीं हो रहे थे, बट ये कट हो रहा है तो पहले इसको कट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या हैं। 2 into 5, तो ये कौन सी टाइप होगी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगी। अंडरस्टूड? यस आगे सर। समझ? यस सर। ऐसे बच्चे सारे पार्ट्स हैं। नाउ अभी हम बच्चे सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में 1B में 1B स्टार्ट करने से पहले बच्चे मुझे थोड़ा सा फिर से एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रूट वाली वैल्यूज, जैसे बच्चे 5x + 2x कितना होगा हर पलक? 5x और 2x को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हर पलक? बोलो बेटा। 7x, 7x। 5x + 2y कितना बनेगा हर पलक? 5x + 2y बेटा कितना बनेगा? बोलो। 7xy, नहीं बच्चे, इनको ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। इसके साथ x है, इसके साथ y है, ये ऐड नहीं कर सकते, सेम टू सेम आंसर आएगा। उसी टाइप से बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में 5x - 2x आ जाए, वेरिएबल सेम है, दीज आर लाइक टर्म्स, तो 3x आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि 5x - 2y है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते बेटा। ये कर सकते हैं? नहीं No, कर सकते sir. ना? वैसे ही बच्चे रूट में वैल्यूज, जैसे 5√2 + 3√2 है, ये लगा के चलो कि जो रूट में वैल्यू है वो सेम है ना, वो एज लाइक x का काम कर रही है। जैसे 5x + 2x 7x बना था ना, ऐसे ही 5√2 + 3√2 ऐड करके कितना बनेगा हर्षित? बोलो बेटा। Sir, 10 + तो 27. बच्चे ये देख, तू इसको देख, 5 और 2 ऐड हुए थे ना, 7 बना था ना, तो यहाँ पे भी 5 और 3 ऐड होंगे, Sir, yes. 8√2 बेटा साथ में। अंडरस्टूड? Sir, yes. 5√2 - 4√3, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। इस टाइप से जैसे ये x है ये y है, उसी टाइप से ये है बेटा, √2 and √3, these are different values. Understood?
समझे बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होगा बेटा। दिस इज द आंसर। और मल्टीप्लाई में चलो 3x इंटू 4x कितना बनता है पीयूष? 3x इंटू 4x कितना बनेगा बेटा? 12x 12। प्राकुल? So 12x square. 12x स्क्वायर बनेगा बच्चे। पीयूष सॉरी सर, मल्टीप्लाई है ना, गलती से बोल यस सर, गलती से सॉरी। नंबर भी कट जाएंगे। यस सर। 12x स्क्वायर आ गया बेटा। अगर 3x इंटू 4y होता बेटा तो क्या आएगा पीयूष? सर 12xy। ऐसी बेटा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। √7 का स्क्वायर है, कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे सीधा लिखेंगे बेटा। अंडरस्टूड? यस सर। हम इसको मतलब जब भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा ना तो हम इसको ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, सीधा 7 लिख देंगे। ओके। अब 3-4 आइडेंटिटीज बच्चे। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यस हर्षित, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल होता है? बोलो बेटा। सर डोंट नो। बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत बार किया है। Sir, मैं बताऊं। हर पलक रुक जाओ बेटा। प्राकुल, हर पलक पता है बेटा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, ऐसी बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर। हर्षित? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, वेरी गुड। तो पीयूष a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? यस सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बोलिए बेटा। यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? प्राकुल? A plus B into A minus B. ये 3 आइडेंटिटीज तो बहुत बार की हैं। 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं ये तीनों आइडेंटिटीज। तो होती हैं कि नहीं होती? यस सर। बस। अब बच्चे जैसे फर्स्ट सम है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और नॉट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें रूट नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये a प्लस ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ बीच में मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के प्लेस पे 2 आ जाएगा, प्लस b के प्लेस पे √2 आ जाएगा, प्लस 2ab। 2 इंटू 2 इंटू √2। ओपन करो बच्चे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4√2। प्राकुल बताओ बच्चे क्या बनेगा यहाँ पे? Sir, that would be 6 plus 4 square under root 2. 4√2। देखो 4 और 2 को ऐड करके 6 बन गया, 4√2 एज लाइक दिस इज आंसर। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं प्राकुल? No, sir. हाँ, इसमें रूट होता ना, रूट वाली वैल्यू √2 ही होता, फिर ऐड हो सकता था। अब ये अनलाइक टर्म्स है, इनको ऐड नहीं कर सकते। दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट, 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया।
किसके इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पर फर्स्ट वाला फिर इरेशनल है। हाँ जी बेटा, उन्होंने रैशनल और इरेशनल पूछा था, तो ये यहाँ से रूट खत्म नहीं हो रहा ना बेटा, यस सर। तो नॉट रैशनल बोलेंगे। उन्होंने इरेशनल तो बोला नहीं, रैशनल और नॉट बोला है ना, नॉट रैशनल, बस ये लिख देंगे। ठीक है, अब यस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पे a है वहां पे 3 लिख देंगे, जहां b है बेटा वहां √3 आ जाएगा। -2 इंटू 3 इंटू √3। ओपन करो बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6√3, 9 और 3 ऐड होके 12 माइनस 6√3। अब इसमें से भी रूट खत्म नहीं हो रहा, तो दिस इज आल्सो नॉट रैशनल। इरेशनल है मतलब हम क्या लिखेंगे, नॉट रैशनल लिखेंगे। समझे बच्चे, आया समझ? यस सर। यस सर। और लग गया बच्चे, बता। यस सर। यस सर। नाउ इसका बच्चे थर्ड पार्ट है जो 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, बट साइन आर डिफरेंट। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया। यस पीयूष, बताओ अभी a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है पीयूष? सर बोलो बच्चे, a plus b into a जो तू minus भूल b। गया था, जो तू भूल गया था वही वाला फॉर्मूला है फिर से, तो फिर भूल Yes, गया। sir. ए स्क्वायर A square माइनस, b square। हाँ फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, बट साइन डिफरेंट होंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। मतलब जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा उसको ये लिख देंगे, जहां पे ये आ जाएगा उसको ये लिख देंगे। अब देखो Yes. ए के प्लेस पे 5 है, बी के प्लेस पे √5 है, ये लिखना है बेटा हमने, तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5, कितना आ गया माइनस करके 20 आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, समझ आया बच्चे? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट अपने आप करोगे, फिफ्थ पार्ट बेटा नहीं, चलो फोर्थ पार्ट में भी थोड़ा सा है, मुझे करवाना ही पड़ेगा ये। बाय यूजिंग, यस हर पलक, कौन सी आइडेंटिटी है बेटा ये? सर a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, किसके इक्वल होता है हर पलक, बोलो बेटा। a माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a। बेटा, बी स्क्वायर प्लस का होता है, ये ध्यान रखना बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में, ठीक है, सिर्फ 2ab के आगे माइनस होता है, रहेगा Okay, ध्यान sir. में। यस सर। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3। वेरी गुड, कोई बात नहीं, बाकी फर्स्ट डे है, थोड़ा सा वो रहता है, 2-3 दिन में ओपन हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। ओके सर। √2, √3 का स्क्वायर बेटा 3। 3, ऐसे ना इसको कट करने की जरूरत नहीं होती, सीधा 3 लिखेंगे। √2 का स्क्वायर 2, 2। बताया था ना मैंने कि जब रूट में वैल्यू का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। प्राकुल, इन तीनों की मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगी? So I guess it will remain the same because like नो नो नो, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में जो बाहर वाली टर्म्स है वो बाहर वाली से मल्टीप्लाई होंगी, जो रूट वाली वैल्यू है रूट वाली से मल्टीप्लाई होगी। sir, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 रहेगा,
Yes, रूट sir. 3 and root 2 multiply होके root 6. Okay. 3 plus 2 5 minus 2 root 6. This is the answer. Okay, understood? Yes, sir. किसी को ये ना समझ आए मतलब दिस इज नॉट रैशनल लिखेंगे, नॉट Not रैशनल, rational. और ऊपर वाले में लिखना रह गया हमारे पास, यस इट इज अ रैशनल. ओके, समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब जो सेकंड सम है बेटा, इसका फिफ्थ पार्ट या सिक्स पार्ट दोनों में से कौन सा करूं? एक पार्ट तुम खुद करोगे कि दोनों ही कर दें? दोनों ही कर लेते हैं, चलो. 2√2 का स्क्वायर. पीयूष 3 का स्क्वायर बच्चे 9. 9. हरपलक 2√2 का स्क्वायर बता. सर 2 का 4, रूट और 2 का 2. वेरी गुड. 9 और 4 2s आर 8. दिस इज द आंसर. आता तो है पलक, तो तेरे को बोलती नहीं है बस, है ना? मम्मी ने बोला है कि बोलना नहीं है? नो सर. हैं? बोलेंगे बेटा तभी हमें कुछ आएगा, ठीक है? ओके सर. अब ये है बेटा √7 का स्क्वायर अपॉन 6√2 का स्क्वायर. √7 का स्क्वायर प्राकुल, So 7. 6 का स्क्वायर, 36. √2 का स्क्वायर 2. 2. कुछ भी कट नहीं हो रहा ना, 7 ऊपर रहेगा और नीचे 72. 36 2s are 72. This is the answer. So this is a rational, but this is not rational क्योंकि रूट खत्म, सॉरी दिस इज आल्सो रैशनल. रूट खत्म हो रहा है. अगर रूट में आंसर रहेगा तो वो नॉट रैशनल है, मतलब इरेशनल है वो. जैसे यहाँ पे था बच्चे, इसमें रूट में रह गया था इसलिए नॉट रैशनल है. जहां से रूट खत्म हो गया, देखो ये 20 आ गया था, रैशनल. 9/8 आ गया, रैशनल. 7/72 आ गया, रैशनल. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. सेकंड का बच्चे मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, फोर्थ पार्ट. रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ. नहीं आएगा तो कल मैं बैठा हूं, ठीक है? मुझसे पूछना. बस एक चीज बच्चे याद रखना ऑलवेज, जो काम मैंने डेली के डेली करवाना है वो डेली के डेली ही करना है. तुम ये नहीं है कि ये पार्ट सर ने करवा दिया था हम नहीं करेंगे. जो पार्ट मैंने करवा दिया, चाहे नहीं करवाया, जहां तक मैंने होमवर्क दिया है वो सारे सम्स करने हैं, ठीक है? हरपलक, हर्षित, पीयूष, प्राकुल, Yes, sir. यस सर. मैथ में आगे निकलना है तो करना पड़ेगा. Sir, हाँ. मुझे ये भेज दो इस book की. हाँ भेज दूंगा बेटा मैं. Okay. तेरे को RS अग्रवाल लगी है प्राकुल? Yes, sir. नहीं भेजा था आदि शर्मा. Sir 2 मिनट देखता हूँ. आर डी शर्मा तो हो नहीं पाएगी, बहुत लेंथी है वो तो. Sir 2 मिनट में बैठ. Sir 2 मिनट. Sir RS अग्रवाल भी. RS अग्रवाल लगी है, ठीक Yes. है? ठीक, कोई बात नहीं बेटा. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 3 into 2√5. चलो पीयूष 3 का स्क्वायर 9. 9. हर्षित 2√5 का स्क्वायर बताओ. 2 का स्क्वायर सर यस. सर 2√5. बच्चे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सर 4 इंटू √5 का स्क्वायर. सर 5. हाँ बस
इतना ही तो पूछ रहा हूं, ठीक है? कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, अपने आप आंसर आता है। यस सर। 3 चलो प्राकुल, तीनों का मल्टीप्लाई करके बता। Yes, sir. 2 to the 6, 6 to 12, 12, so 12 under root 5. वेरी गुड। 9 + 20 + 12 रूट 5 बेटा, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा प्राकुल? 29 plus 12 under root 5. यस बच्चे, इस 12 को कहीं इसमें ऐड मत कर देना, वो उसके साथ मल्टीप्लाई है इसलिए वो डिफरेंट टर्म होगी। ये दोनों लाइक हैं, वो ऐड हो गई। दिस इज द आंसर। ओके, Okay, sir. अब तुमने यही करना है, फर्स्ट ए एक्सरसाइज करनी है और फर्स्ट बी के फर्स्ट 2 सम्स ही करनी है, ठीक है? आया समझ? sir. Okay, sir. के बाद यस सर। इजी है, कोई खास नहीं है। मेन एक्सरसाइज तो बच्चे सी एक्सरसाइज से ही शुरू होगी। जो सी एक्सरसाइज है ना, वो मेन है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो बेकार है। चलो इतना एनफ है बच्चे आज के लिए। ओके, सर ये भी यहाँ पे जाके Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर हम स्क्रिबल करके कर सकते हैं जल्दी जल्दी? कैसे समझा नहीं? सर जल्दी जल्दी स्क्रिबल मतलब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मतलब ऑर्डर में लिखना। इसको यस सर। हाँ लिख सकते हैं, बट उसमें पता है क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ओके सर। इसलिए डिटेल में करोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। तो मोहाली से हो बेटा कि जीरकपुर से हो? सर जीरकपुर। जीरकपुर में कहाँ पे? सर जीरकपुर में बिल्टाना है, उधर रहता हूँ। अच्छा ठीक है, एक्चुअली में मेरा ब्रदर भी जीरकपुर में ही है, अच्छा गणपति इनक्लेव में है वो तो, अच्छा सर पास में ही है पास में ही है। मेरे ख्याल से। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर।